Now, in our second video, we will discuss the poem The Ant and the Cricket. This is also from Honeydew. A fable is a story, often with animals as characters, that conveys a moral. A fable is type of a moral story in which we use animals as characters sometimes. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance. As we will go through this poem, we will come to know that this poem contains a lot of significant value, जो लाइफ में हमें कोई moral सिखाएगी, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Here, the two animals, the ant and the cricket, resembles how to live their life in future. Surely, you have seen a cricket that has two legs. A cricket is like a grasshopper, green in color. We have seen a cricket and a grasshopper. It has two legs, while ant has four legs. Now, we will start with the poem. A silly young cricket, accustomed to sing. Here, the cricket is said to silly because we will see in the poem that cricket is not doing any of his work. He just sits idle and sings daily, wandering around in the nature. Accustomed to sing means he used to sing every time. Through the warm sunny months of gay summer and spring. इसका मतलब समर सीजन में, वार्म मंथ्स में क्रिकेट की आदत थी कि वो गाना गा के अपने समर सीजन को एंजॉय कर रहा था. He was happy singing in the summer season. Began to complain when he found that at home मतलब जब उसे पता चला कि उसके घर में कुछ भी नहीं है, उसका सारा सामान खत्म हो चुका है. सामान means all the food which was being kept as a store material was empty. He started to complain. His cupboard was empty and winter was come means उसे लगा धीरे धीरे विंटर सीजन पास आ रहा है और उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है. Not a crumb to be found. Crumb मतलब piece of bread मतलब खाने का एक टुकड़ा भी नहीं है. On the snow-covered ground, not a flower could be seen, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me? क्रिकेट सोचता है कि विंटर सीजन जब आएगा तो पूरा एटमॉस्फेयर स्नो से कवर्ड हो जाएगा. ना ट्री पे उसे कोई फूल मिलेगा, ना कोई पत्ती मिलेगी, तो वो क्या खाएगा? वो भूख के कारण मर जाएगा. अब उसका क्या होने वाला है? सो ही स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट विल बिकम. एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड मतलब क्रिकेट बोल्ड हो गया. बोल्ड मतलब स्ट्रांग हो गया. क्यों? क्योंकि उसे डर लगने लगा कि विंटर सीजन में ही वुड स्टार्व मतलब खाने को नहीं मिलेगा उसे, और इस भूख के कारण वो उसकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा. विच मेड हिम बोल्ड. ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड मीन्स ही वॉज वेट and he was shivering with cold. Away he set off to a miserly ant. Set off means he went to his friend ant. Miserly में ant को miserly इसीलिए बोला हुआ है because ant हमेशा अपना खाना, अपना हर वर्क बहुत सिस्टमैटिक वे में तरीके से करती है, ना कि क्रिकेट की तरह टाइम स्पेंड करके. To see if to keep him alive he would grant. To see if to keep him alive he would grant
him shelter from rain and a mouthful of grain. क्रिकेट ने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड एंड के पास जाता हूँ और देखता हूँ क्या वो मुझे अलाइव, मुझे जिंदा रखने के लिए परमिशन ग्रांट करेगा। परमिशन मतलब उसके यहाँ रहने की, खाना शेयर करने की, जिसकी वजह से मैं भूखा नहीं मरूं, स्टार्व नहीं करूं और बारिश में, ठंड के कारण, स्नो के कारण मेरा प्रोटेक्शन हो सके। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रीपे इट टुमारो। ही विश्ड मतलब उसने सोचा कि वो सिर्फ इस सीजन बोरो करेगा और नेक्स्ट सीजन वापस जो भी चीज वो बोरो करेगा, जितना भी वो बोरो करेगा, वो उसे वापस रीपे भी कर देगा, जमा भी कर देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो। अगर एंट उसकी मदद नहीं करता, उसका फ्रेंड उसकी मदद नहीं करता, तो वो भूख के कारण मर जाएगा एंड ही वुड फील वेरी सैड। सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड योर फ्रेंड। When Cricket arrived to the ant and pleaded and requested him to help, and replied कि मैं आपका फ्रेंड भी हूँ और सर्वेंट भी हूँ, but we ants never borrow, we ants never lend. Ants ने क्रिकेट को ये क्लियर समझा दिया कि उनका एक रूल है, ना वो कभी किसी से बोरो करते हैं, ना कभी किसी से उधार लेते हैं, ना कभी किसी को उधार देते हैं। But tell me dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? एंट ने क्रिकेट से पूछा, माय डियर फ्रेंड, मुझे एक बात बताओ, जब वेदर कंडीशन बहुत अच्छी थी, समर सीजन था, तो क्या तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं बचा के रखा? कुछ भी नहीं बचा के रखा मतलब कोई भी खाना स्टोर करके नहीं रखा? क्रिकेट ने जवाब दिया, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करा। My heart was so light that I sang day and night. क्रिकेट ने बोला, मैं अपने आप को इतना लाइट और हैप्पी फील कर रहा था कि मैं सारा दिन बस गाते रहता था। डे एंड नाइट आई यूज्ड टू जस्ट सिंग एंड सिंग एंड सिंग। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे। क्यों? क्योंकि बिन मुझे नेचर गे मतलब हैप्पी लग रहा था और मुझे घूमना, वॉन्डर करना, आइडल घूमना ज्यादा अच्छा लगता था। यू सैंग सर, यू से। एंट ने पूछा कि सर, आपने बोला आपने सारा दिन गाना गाया और कुछ नहीं करा। गो देन, सेज द एंट, एंड डांस द विंटर अवे। फिर एक सरकास्टिक वे में एंट क्रिकेट को रिप्लाई करता है कि सर, जैसे आपने समर सीजन में गाना गाया वैसे ही अब जाओ, विंटर सीजन में भी डांस करते रहो और गाना गाते रहो। सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. I'll warrant it's true. Some crickets have 4 legs and some have 2. In the end of this poem we will see ant ने क्रिकेट को वापस अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटा दिया बिना उसकी मदद किए। In both point of view, is it right or is it wrong? उसे खाली हाथ लौटाना चाहिए था या नहीं? अगर उसने क्रिकेट को खाली हाथ लौटा दिया, इसका मतलब वो उसका ट्रू फ्रेंड नहीं है, और वो अगर इस मोमेंट पे उसकी हेल्प कर देता तो शायद फ्यूचर में दोबारा क्रिकेट को ये अपनी गलती का एहसास नहीं होता कि उसे फ्यूचर के बारे में भी अपनी चिंता करनी चाहिए। फोक्स, दिस इज अ फेबल, मतलब ये एक फेबल है, ये एक जस्ट पोयम है, अ स्टोरी है, बट पोएट को ये लग रहा है कि ये एक सच्चाई है, इट इज ट्रू, और हमेशा उसे ऐसा करते हुए दिखा है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। मीनिंग ऑफ द लास्ट लाइन इज, कुछ लोग एंड की तरह मेहनत करते हैं जो अपने फ्यूचर के लिए भी सिक्योर करते हैं और अपना प्रेजेंट भी जीते हैं, और कुछ लोग क्रिकेट की तरह होते हैं जो पूरा टाइम अपना लाइफ वॉन्डर करते हुए बिताते हैं और लास्ट में पछताते हैं कि काश हम भी मेहनत कर लेते तो लाइफ में आगे कुछ सक्सीड हो पाते।
Now girls, in this way we have seen the end of the poem The Ant and the Cricket. So life में एक चीज हमेशा याद रखना, be a ant, not a cricket. Hope you have understood with this video. Now in our next part we will see the question and answers. Thank you.